Hello everyone, welcome to Unix Spark Academy. Today we are going to discuss most asked electrical objective question with their explanation, जो कि कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड है। दोस्तों एट द एंड मेरा ही वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो यूनिक स्पार्क एकेडमी को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, द आउटपुट ऑफ द सिस्टम हैज एन इफेक्ट अपॉन द इनपुट क्वांटिटी, देन द सिस्टम इज। ऐसी कौन सी कंट्रोल सिस्टम है जिसमें सिस्टम का आउटपुट जो है वो सिस्टम के इनपुट के ऊपर अफेक्ट करता है? ऑप्शन ए ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, बी क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, सी आइदर वन और टू, डी नन ऑफ द अबव। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर, दैट इज अ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम. Generally, control systems are classified into two different types, like open loop control system and another one is a closed loop control system. और जहां तक बात है आपकी closed loop control system की, तो इन closed loop control system जो भी आपका required output है सिस्टम का, वो आपके इनपुट पे डिपेंड करता है. मतलब इस सिस्टम के अंदर फीडबैक एलिमेंट को प्रोवाइड किया जाता है ताकि डिस्टरबेंस के कारण जो भी आउटपुट में चेंजेस आ रहे हैं वो सारे के सारे चेंजेस फीडबैक एलिमेंट के थ्रू इनपुट के साथ कंपेयर किए जाते हैं ताकि एरर को मिनिमाइज किया जा सके. इसीलिए ये जो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट है एज कंपेयर टू ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम. मींस इट इज अ मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम. और ये जो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है इसमें फीडबैक एलिमेंट का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, इसीलिए लेस एक्यूरेट है एज कंपेयर टू क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम. अगर एडवांटेजेस की बात करेंगे तो इट इज अ मोर स्टेबल एज कंपेयर टू क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम. इट इज अ मोर स्टेबल. तो हमेशा आपको याद रखना है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम से, और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम मोर एक्यूरेट है एज कंपेयर टू ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम. तो हो सकता है एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन भी आपको पूछा जाए. ओके. Question number 2, by using which of the following elements mechanical translation systems are obtained? A mass element, B spring element, C damper element, D all of the above. All mechanical systems are classified into two types. Number 1 mechanical rotational system and number 2 mechanical translation system. Mechanical rotational system को तो जो भी आने वाला बाद का वीडियो है उसके अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे. फिलहाल हम पढ़ते हैं mechanical translation system. In mechanical translation system, force that is denoted by capital F is your input. ये आपका input होता है mechanical translation system के अंदर. And linear displacement that is denoted by small x, or linear velocity denoted by small v. ये होता है आपका आउटपुट. Generally in mechanical translation systems has a three ideal elements. First one is a mass element denoted by capital M. Second one is a damper element called as a friction element, or it is also called as a dashpot element denoted by capital B. And third one is a spring element denoted by capital K. और जहां तक बात है इक्वेशन की, तो मैकेनिकल ट्रांसलेशन सिस्टम में आपका इक्वेशन बनता है कुछ इस तरीके से. फोर्स F इज इक्वल टू M इंटू डी वी बाई डी टी प्लस B इंटू वी प्लस K इंटीग्रेशन V इंटू डी टी. एंड एज वी नो दैट V means it is a linear velocity. Linear velocity is a rate of change of linear displacement x with respect to time t. So put this value in above equation. तो equation कुछ इस तरीके से बनेगा. F is equal to m into d square x divided by dt square plus b into dx divided by dt plus k into x. And as we know that this is a mechanical translation system. This mechanical translation system is divided into three groups. First one is a mass element, second one is a damper element, and third one is a spring element. So option D is correct here. That is all of the above. By using which of the following element mechanical translation systems are obtained? So option D is correct here. All of the above.
Question number 3, which of the following is analogous quantity for the mass element in a force voltage analogy? A, resistance, B, inductance, C, capacitance, and D, all of the above. So first of all, the electrical equivalent of the mechanical elements in a force voltage analogy are as follows. एक साइड में अगर आप देखेंगे तो मैकेनिकल एलिमेंट प्रेजेंट है और दूसरी साइड में उसके इलेक्ट्रिकल एनालॉगस एलिमेंट्स प्रेजेंट है। जैसे फोर्स का इलेक्ट्रिकल एनालॉगस एलिमेंट वोल्टेज होता है, उसी तरीके से मास एलिमेंट का एनालॉगस एलिमेंट आपका यहाँ पे इंडक्टेंस होगा, और उसी तरीके से डैश पॉइंट का एनालॉगस एलिमेंट यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा। सेम स्प्रिंग एलिमेंट के लिए इनवर्स कैपेसिटेंस है, लीनियर वेलोसिटी के लिए करंट है और लीनियर डिस्प्लेसमेंट के लिए चार्ज है, क्यू है। फिलहाल हमको यहाँ पे पूछा गया है एनालॉगस क्वांटिटी ऑफ द मास एलिमेंट, तो मास एलिमेंट के लिए आपका एनालॉगस क्वांटिटी यहाँ पे होगा इंडक्टेंस। So option B is correct here. That is the inductance. Question number 4. If two blocks having a gain A and B respectively are in series connection, find the resultant gain using block diagram reduction technique. Option A plus B, B, A into B, C, A minus B, D, A by B. Generally in block reduction technique, rule number 1, two blocks having a gain A and B are connected in serially like this. अगर आपके दो ब्लॉक है जिसका गेन ए और बी है, दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, एट दैट टाइम्स द रिजल्टेंट गेन इज हाउ मच? तो रिजल्टेंट गेन आएगा आपका ए इनटू बी। सपोज सेम ब्लॉक को अगर पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है कुछ इस तरीके से, टू ब्लॉक आर कनेक्टेड इन पैरेलली, दिस इज रूल नंबर 2। दो ब्लॉक को अगर पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है जिसका गेन ए और बी है रिस्पेक्टिवली, दोनों को अगर पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है दैट टाइम्स उसका रिजल्टेंट गेन आएगा ए प्लस बी। फिलहाल यहाँ पे पूछा गया है कि टू ब्लॉक्स हैविंग गेन ए एंड बी आर कनेक्टेड इन सीरियली, अगर सीरीज में कनेक्ट किया जाता है दो ब्लॉक को जिसका गेन ए और बी है, तो उसका रिजल्टेंट गेन कितना आना चाहिए? सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर, दैट इज ए इनटू बी। क्वेश्चन नंबर 5, इन अ सिग्नल फ्लो ग्राफ इनपुट नोड इज अ नोड हैविंग ओनली ए इनकमिंग ब्रांचेस, बी आउटगोइंग ब्रांचेस, सी बोथ 1 and 2, डी नन ऑफ द अबव। जनरली सिग्नल फ्लो ग्राफ इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंट्रोल सिस्टम, जिसके अंदर हर नोड किसी सिस्टम वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। नोड मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पे दो या दो से ज्यादा ब्रांचेस एक दूसरे को टच करने का काम करता है। इसमें अलग अलग टर्मिनोलॉजी यहाँ पे सिग्नल फ्लो ग्राफ के अंदर यूज किया गया है। फर्स्ट वन इज इनपुट नोड, इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ सोर्स नोड, इट इज अ नोड हैविंग ओनली आउटगोइंग ब्रांचेस। सेकंड वन इज आउटपुट नोड, इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ सिंक नोड, इट इज अ नोड हैविंग ओनली इनकमिंग ब्रांचेस। एंड मिक्स नोड, इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ चेन नोड, मींस दोनों का कॉम्बिनेशन, इनपुट नोड और आउटपुट नोड दोनों का कॉम्बिनेशन होता है आपका ये मिक्स नोड और चेन नोड। In a signal flow graph, the input node is a node having only option B, outgoing branches. So option B is correct here. That is outgoing branches. Question number 6. What is the type of the closed loop system for the Planck transfer function G of S is equal to K divided by S square 1 plus TS and with the unity feedback? Option A 0, B 1, C 2, D 3. यहाँ पे एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया है आप लोगों को। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है आपका ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू जी ऑफ एस इनटू एच ऑफ एस। यूनिटी फीडबैक मींस एच ऑफ एस इज इक्वल टू 1। सो पुट हियर जी ऑफ एस इज इक्वल टू के डिवाइड बाय एस स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस टी इंटू एस into 1. So this is your transfer function, this is your open loop transfer functions। और आपको पूछा गया है टाइप ऑफ द सिस्टम। टाइप ऑफ द सिस्टम मींस ओरिजिन पे आपकी कितने नंबर ऑफ पोल्स प्रेजेंट है, उससे आप सिस्टम का टाइप को पता कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ओरिजिन पे आपके 2 पोल्स प्रेजेंट है, मींस अगर पोल 0 पैटर्न आप ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे आपके 2 पोल्स प्रेजेंट है 0 पे, ओके, मींस कितने ओरिजिन पे कितने नंबर ऑफ पोल्स आपके प्रेजेंट है, ये सिस्टम का टाइप बताता है।
तो ओरिजिन पे कितने नंबर ऑफ पोल प्रेजेंट है? 2 पोल्स प्रेजेंट है। सो सिस्टम का टाइप होगा आपका 2। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, दैट इज द 2। क्वेश्चन नंबर 7, द स्टेडी स्टेट एरर ड्यू टू रैंप इनपुट फॉर अ टाइप 2 सिस्टम इज इक्वल टू ए कांस्टेंट, बी 0, सी इनफाइनाइट एंड डी नॉन जीरो नंबर। अभी आपको स्टेडी स्टेट एरर पूछा है, आपको पूछा गया है यहाँ पे स्टेडी स्टेट एरर फॉर द रैंप इनपुट फॉर अ टाइप 2 सिस्टम। जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको टाइप 2 सिस्टम के बारे में बता दिया था। टाइप 2 सिस्टम मीन्स ओरिजिन पे आपके 2 नंबर ऑफ पोल्स प्रेजेंट होने चाहिए। ये आपका टाइप 2 सिस्टम्स है। दिस इज द ट्रांसफर फंक्शंस ऑफ टाइप 2 सिस्टम मीन जी ऑफ एस इनटू एच ऑफ एस। अभी आपको स्टेडी स्टेट एरर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए ये एरर इक्वेशन ई ऑफ एस इज इक्वल टू आर ऑफ एस डिवाइड बाय 1 प्लस जी ऑफ एस इनटू एच ऑफ एस। फाइनल वैल्यू थ्योरम को अगर आप अप्लाई करेंगे तो सेम फॉर्मूला को आप इस तरीके से भी लिख पाएंगे, ई ऑफ टी इज इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस इनटू ई ऑफ एस, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज द स्टेडी स्टेट एरर, ESS। ई ऑफ एस की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करेंगे, ये वाले वैल्यू को, एस तो ऑलरेडी है, और यहाँ पे जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस की वैल्यू अगर आप ये पुट करते हैं, ये वाली वैल्यू, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो बाद में जाके आपका जो भी स्टेडी स्टेट एरर आएगा रैंप इनपुट के लिए तो आएगा 0। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे टैबुलर फॉर्म में आपको टाइप्स और सिस्टम का इनपुट्स अलग अलग, स्टेप इनपुट, रैंप इनपुट और पैराबोलिक इनपुट, हर इनपुट के लिए, हर टाइप के लिए स्टेडी स्टेट एरर क्या होगा ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है। तो स्टेडी स्टेट एरर ड्यू टू द रैंप इनपुट फॉर द टाइप 2 सिस्टम इज इक्वल टू 0। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, डिफरेंशिएशन ऑफ पैराबोलिक रिस्पॉन्स इज अ डैश रिस्पॉन्स, ए पैराबोलिक, बी रैंप, सी स्टेप, डी इंपल्स। दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे तो पैराबोलिक रिस्पॉन्स का जो भी डेरिवेटिव्स होता है वो होता है रैंप रिस्पॉन्स। रैंप रिस्पॉन्स का डेरिवेटिव्स अगर करेंगे तो मिलेगा आपको स्टेप रिस्पॉन्स। स्टेप रिस्पॉन्स का डेरिवेटिव्स होता है इंपल्स रिस्पॉन्स, और ये जो इंपल्स रिस्पॉन्स होता है उसका अगर आप लैप्लास लेंगे तो वो बनेगा ट्रांसफर फंक्शन। ये आपको याद रखना है, पैराबोलिक रिस्पॉन्स का डेरिवेटिव्स रैंप रिस्पॉन्स होता है, रैंप रिस्पॉन्स का डेरिवेटिव्स स्टेप रिस्पॉन्स होता है, स्टेप रिस्पॉन्स का डेरिवेटिव्स इंपल्स रिस्पॉन्स होता है, और इंपल्स रिस्पॉन्स का लैप्लास आपका ट्रांसफर फंक्शन होता है। अभी फिलहाल यहाँ पे पूछा गया है डिफरेंशिएशंस ऑफ पैराबोलिक रिस्पॉन्स। पैराबोलिक रिस्पॉन्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो वो होगा आपका रैंप रिस्पॉन्स। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर, that is the ramp response. Question number 9, the unit impulse response of the second order system is 1/6 into e raised to minus 0.8 t sine 0.6 t. Then the natural frequency is A 1 radian per second, B 2 radian per second, C 0.6 radian per second and D 0.8 radian per second. ये आपका इम्पल्स रिस्पॉन्स है 1/6 इंटू ई रेज टू माइनस 0.8 टी साइन 0.6 टी। और जैसे कि मैंने पिछले स्लाइड में आप लोगों को बता दिया था कि किसी भी इम्पल्स रिस्पॉन्स का अगर आप लैप्लास लेंगे तो वो ट्रांसफर फंक्शन होता है, उसी तरीके से अगर इसका आप लैप्लास लेंगे 1/6 इंटू ई रेज टू माइनस 0.t इंटू साइन 0.6 टी, तो इसका लैप्लास कुछ इस तरीके से आएगा 0.1 डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 1.6 एस प्लस 1। आप लोगों को मैथमेटिक्स का वो फॉर्मूला तो पता ही होगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज टू माइनस एटी इंटू साइन बीटी। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज टू माइनस एटी इंटू साइन बीटी, ये होता है आपका बी डिवाइड बाय एस प्लस ए ब्रैकेट स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, दिस इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस इंपल्स फंक्शंस, दिस वन 0.1 डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 1.6 एस प्लस 1, और इस इक्वेशन को आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम इज ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 2
जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। कंपेयर दिस एंड दिस इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करेंगे दैट टाइम्स ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू आपको मिलेगा 1। इट इज अ नेचुरल फ्रीक्वेंसी, सो ऑप्शन ए दैट इज अ 1 रेडियन पर सेकेंड इज करेक्ट। Question number 10. A system is stable for A. Gain margin and phase margin both are positive. B. Gain margin and phase margin both are negative. C. Gain margin is negative. D. Phase margin is negative. अगर आपका गेन मार्जिन और फेज मार्जिन दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब द गिवन सिस्टम इज स्टेबल, तो आपकी सिस्टम स्टेबल है। अगर आपका गेन मार्जिन और फेज मार्जिन दोनों नेगेटिव है, इसका मतलब द गिवन सिस्टम इज अनस्टेबल। और अगर आपका गेन मार्जिन और फेज मार्जिन ना कि निगेटिव है ना कि पॉजिटिव है, अगर वो जीरो है दैट टाइम द गिवन सिस्टम इज मार्जिनली स्टेबल। तो हमेशा आप लोगों को ये याद रखना है। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिलहाल यहाँ पे पूछा गया है द सिस्टम इज स्टेबल फॉर, सिस्टम आपकी कब स्टेबल होगी, जब आपका गेन मार्जिन और फेज मार्जिन दोनों पॉजिटिव होंगे। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर, दैट इज द गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन बोथ आर पॉजिटिव। सो थैंक यू एवरीवन, होपफुली मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो यूनिक स्पार्क एकेडमी को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और दोस्तों के साथ शेयर करो।